इसीलिए जब संडे को आते हो when you अपने come on a बगल Sunday- वाले को बोलो, अगर तुम्हें दिखे कि मैं सो रहा हूं, चूटी काटो मुझे तेज से. Give you- them permission. You can tell your neighbor, if you see me sleeping, you can pinch me. Yeah, tell them, show me love through your holy knuckle. उनको कहना, मुझे प्रेम दिखाना, पवित्र प्रेम दिखाना, मुझे उठा करके घूसा मार के. Because the most loving thing you can do to your neighbor, Jesus said, love your neighbor right now. During the preaching of the word is to make sure that your neighbor isn't sleeping. That's your responsibility. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम से भरा काम जो अपने नेबर के लिए आप कर सकते हो जब वचन के अधीन वो बैठे हैं, वो ये है कि वो सोने ना पाए. Amen? आमेन. Hallelujah. Then they are your good friends. तब वो आपके अच्छे दोस्त हैं. Because the word is coming for you. क्योंकि वचन आपके लिए ही आ रहा है. And every word has the power to transform your coming generations. One word of God. और हर एक वचन में ये सामर्थ्य है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बदल के रख दे. एक वचन में. In the midst of every sermon is the proceeding word of the Lord. हर एक प्रचार के बीच में परमेश्वर की ओर से भेजा गया वचन होता है. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, I'll okay? tell you a story. डॉक्टरिंग मत बना देना इसकी. Don't make it a doctor. कहानी मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी. It's a story I read when I was a kid. हाँ. बचपन में मैंने सुना था, एक मणि होती थी, पारस मणि. सुना किसी ने? There should be a gem. और वो क्या करती थी? जिसको छूती थी वो सोना बन जाता. Whatever it touched, it became gold. सो एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक मेटल लिया, एक धातु लिया, A man took a metal और उसको पता चला कि एक पहाड़ है, उसके अंदर एक गुफा है, उसके अंदर वो मणि है. and he got to know there's a mountain in which there's a cave and that's where तो the पूरी gem is. रात वो छूता रहा जस्ट देखने के लिए कि ये जो धातु है ये सोना बनती है कि नहीं. So he kept on touching all through the night करता to रहा, see if करता that रहा, metal becomes gold. करता रहा पूरी Kept on रात. doing it. थोड़े टाइम बाद करते करते उसका इंटरेस्ट चला गया. After some time, he lost interest. तो वो अब बेमन से करता रहा, And now, disheartenedly, he was मगर doing it. करता रहा. But he kept doing it. फिर सुबह हो गई. Then it was morning. जितने छोटे छोटे पत्थर उस गुफा में थे, All the small pebbles. उसने back. सबसे इस धातु को छू लिया. He touched all the pebbles with this. जब सुबह देखा In the morning when he तो वो saw, धातु सोना बन चुका था, this metal had become gold. मगर उसको नहीं पता था कि मणि कहाँ है. But now he did not know which one was the gem. Don't become so familiar with the preaching of the word that you aren't benefiting with it anymore. परमेश्वर के वचन के प्रचार से इतना परिचित मत हो जाओ कि उससे लाभ ना ले पाओ. My son, give attention to my words. मेरे पुत्र मेरे शब्दों को ध्यान धरकर सुन. That's a part you have to play. ये आपका हिस्सा है जो आपको करना है. When you come every Sunday, you will have to make a conscious commitment that I will not let the words of God fall into my heart like a wayside, but my heart is going to receive the seed of God's word as a good ground that is going to bear 30-fold, 60-fold and 100-fold fruit. जब आप हर रविवार कलीसिया में आते हो तो ये ठान लो कि मेरे दिल पर वचन ऐसे नहीं गिरेगा जैसे मार्ग में बीज गिरा था, लेकिन मैं उसको ग्रहण करूंगा एक अच्छी भूमि की तरह कि वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए. Amen? Amen. When we do something long enough, जब हम कुछ बहुत समय तक करते हैं, we get into the routine of it. हमें उसकी आदत पड़ जाती है, रूटीन बन जाता है. And that loses value. The awe is gone, the honor is gone. Now we do it as a religious routine. And when you do it as a routine, you don't benefit from it anymore. और जो उसके लिए हमारे दिल में पहले आदर था वो गवा देते हैं, वो ऑनर गवा देते हैं और अब एक रूटीन की तरह उसको करते हैं. You should understand that every time we gather together, आपको समझना है जब कभी हम मिलते हैं साथ, there is a specific word from the sermon that God will highlight to you because He knows your situation. वचन के समय में, प्रचार के समय में एक खास भाग होगा जो प्रभु आप पर प्रभावित करेगा क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी परिस्थिति को जानता है. पर वो खास भाग आप नहीं पकड़ पाओगे
अगर आप ध्यान धरकर उसका वचन नहीं सुनते। But you will not be able to catch that special part that God is sending for you if you're not hearing His word intently. आमीन। आपने सुना आज उन जो बहन ने गवाही में कहा कि साम 91 की टीचिंग में कहा गया था, मैं अपना सर तकिए में, that was for her, God delivered. One word, bam, came to her, got a deliverance. That sister heard that word, उन्होंने वचन सुना in the teaching of Psalm 91, उन्होंने पकड़ लिया और उससे आजाद हो गई। So वो मसीह मत बनना जो कहते हैं आज तो मजा आ गया, आज तो मतलब मजा आ गया वचन में। अच्छा क्या सीखा आपने वो पता नहीं है मगर मजा आ गया। Yeah, so don't be those believers who say I really enjoyed today. What did you learn? I don't know what I learned, but I really enjoyed today. और शैतान बोलेगा ऐसे मसीहों को देख के मुझे मजा आ गया। And the devil will say, looking at such believers, I really enjoyed. यही तो वो चाहता है। That's what he wants. वचन में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ रास्ते के किनारे गए और तुरंत चिड़िया आई और उसको उठाकर ले गई। और यीशु ने कहा इस दृष्टांत का अनुवाद ये है कि बीज बोने वाला वचन को बो रहा है और जो सड़क के किनारे गिरे वो एक तरह का हृदय दर्शाता है लोगों का। सड़क के किनारे आपको क्या मिलता है? कूड़ा करकट। वो वचन पर ध्यान नहीं देते, वो उसको कूड़े की तरह जानते हैं। नाउ मुझे पता है जो मैं कहना जा रहा हूं वो कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर मैं फिर भी कह रहा हूं। कलीसिया की दिक्कत ये इसलिए है because we have kept the prayers of men of God above the word of the living God, and that's the problem. हमने परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया है, and this is the problem of the church. बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। The sower went to sow the seed. There is nothing that substitutes the word of the living God. कोई भी चीज जीवित परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकता। मेरी सेवकाई तब सफल है जब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन का प्रेमी बना दूं। जिस दिन वो हो गया मैं चला जाऊंगा, मगर विश्वास की ये लेगेसी चलती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। My ministry is successful the day I make you lovers of the word of God. Even when I go away, this legacy of faith will carry on and nobody will be able to stop it. Amen? So, यीशु ने कहा चिड़िया शैतान को दर्शाती हैं, और जब वचन उन हृदयों में गिरा जो बहुत हल्का जानते हैं उसको, जो कोई कीमत उसमें नहीं देखते। जैसे सड़क के किनारे आप देखते हैं सुबह जब वो झाड़ू मारने वाला आता है, वो झाड़ू तो उसमें गुटखे के पैकेट हैं, उसमें सारा कूड़ा है, वो साइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कुछ मसीह हैं, वो प्रीचिंग में वो वैल्यू किस में देखते हैं? केवल ले हैंड में, प्रार्थना में, मुझे रुमाल दे दो, मुझे तेल दे दो। मगर जब प्रचार होता है जो परमेश्वर का वचन है उस पर उसको वो कीमती नहीं जानते, और इसीलिए वो वैसा जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो जिए। Because many believers, their attention is on the oil they can get, the lay hand prayer they can get, and they do not honor the word of God. They treat it like garbage, and that's why they're not able to receive what God wants to give them. Don't misunderstand, आप हमें गलत मत समझिए। हम भी anointing oil सर्विस करते हैं, हम भी lay hand prayer करते हैं। We do lay hand prayer. मगर वो आपको इसीलिए यीशु ने जो कमजोर है उसके साथ कमजोर बन जाओ। With the weak you become वहां weak. से शुरू होता है। That's where it मगर starts. वहां से आपको लेकर आना है कि आप अपने विश्वास में बलवंत हो जाओ और अपने पिता से खुद लेना सीख लो जो आपका है विश्वास। But we have to bring you out of that place to that place where you are strong in faith and you learn to receive from your Father what belongs to you. अगर किसी का कोई बच्चा है और माता पिता हमेशा उसे गोदी में रखें और कभी चलने ना दें उसे, और वो बड़ा हो गया और हमेशा, तो वो बहुत अच्छे माता पिता नहीं है। If there's a child and his parents always carry him in their lap, never allow him to walk, then they're not good parents. वो बड़ा हो गया अब 8-10 साल का, Now he is a grown 8-10 मगर अब years kid. अपाहिज हो चुका है क्योंकि कभी उसे खुद चलना नहीं सिखाया गया। इतने सारे मसीह आत्मिक रीति में आज अपाहिज हैं क्योंकि केवल
किसी और के विश्वास में उनका विश्वास है। नहीं, आज परमेश्वर आप सबको कह रहा है अपना विश्वास में बढ़ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से और वचन के सुनने से होता है। Now the child is 10 years old but is handicapped, and many believers are handicapped. They are living on borrowed faith, but God wants you to grow and walk in your own faith, and faith comes by hearing the word of God. I'm telling you that if I just build your faith on me and I die, I'll be a miserable leader, because then the entire thing is gone. अगर मैं आपका विश्वास अपने ऊपर बना दूं और फिर मैं मर जाऊं तो ये सब बंद हो जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। But if I can make you the lovers of the word of God, मैं आपको बता रहा हूं अभी इंडिया में क्या चल रहा है। बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है, और ये जो अब बेदारी परमेश्वर के वचन की है ये रुकने वाली नहीं है। कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेदारी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन के बारे में है। और बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड अबाइड्स फॉरएवर। What is happening in India? Every child is confessing the word. Believers are putting the word in their mouth and receiving their breakthrough. And this revival is not about any man of God, it's about the word of God. Amen. इतने सारे हमें मैसेज आते हैं, पापा जी तेल भेज दो। हमने तेल भेज देंगे, पहले वचन जो भेज रहे हैं हर संडे वो भी सुन लो एक बारी। We get so many तेल भी भेज देंगे आपको। So many messages, Papa ji, can you send oil? We say we'll send you oil, but we send the word every week. Receive that first. Amen. I've sent my word मैंने अपने वचन को भेजा and healed your diseases और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है and redeemed you from your destruction. और विनाश से तुम्हें बचा लिया है। इसीलिए यीशु मसीह उस सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस सूबेदार ने कहा यीशु तुझे मेरे घर में आकर मेरे नौकर के ऊपर ले हैंड करने की जरूरत नहीं है, केवल वचन बोल दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। This is why Jesus marveled at the faith of the centurion. He said, you don't have to come into my house, just say the word only and my servant will be healed. वो बच्चा क्रिस जो कितने मिनट तक 20 मिनट तक मर चुका था, क्लिनिकली डेड। That baby Chris was dead. मुझे आज भी अच्छे से याद है, उसकी माँ पीछे आई मेरे पास। I still remember his mom came at the back. See, great faith. महान विश्वास। वो कह सकती थी कि नहीं चलो, उन्होंने कहा आप केवल एक "Come with me." वर्ड बोलो, हम दोनों एग्री कर रहे हैं, मैं आपके साथ, केवल वचन रिलीज कर दो, क्रिस वहां चंगा हो जाएगा। She said to me, just release the word, Chris will be healed there. I have come to agree with you in the word you release. Amen. If we want a lasting fruit in this nation, अगर इस देश में बने रहने वाला फल चाहिए, we have to take people to the pure word of God. तो हमें लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन पर ले जाना होगा, उसके शुद्ध वचन पर ले जाना होगा। Amen. और ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है। And this ministry the Lord has given to me. If you look at me, then I'm a failure. अगर आप मेरी ओर देखते हैं तो मैं फेलियर हूँ। But if I can teach you to look at the word, लेकिन अगर मैं आपको सिखा पाऊँ वचन की ओर देखना, then I've done my job. तो मैंने अपना काम कर लिया। Amen. क्योंकि मैंने आपको बताया था एक समय ऐसा था जब जूडा को फीवर हुआ और वो झटके मारने लगा। I told you there was a time when Judah had fever and he was having seizures. क्योंकि जो हम आपको सिखाते हैं हम भी वही करते हैं। Because what we teach you, we do What do ourselves. we do when the enemy comes against us? हम क्या करते हैं जब दुश्मन हमारे खिलाफ आता है? We speak the word. हम वचन को बोलते हैं। हम वचन की घोषणा करते हैं। We declare the word. That is what we teach you. हम यही आपको भी सिखाते हैं। Because that works. क्योंकि ये काम करता है। Amen.
और सूबेदार यीशु से कह रहा है तू बस वचन बोल दे प्रभु, And the वचन centurion- बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मुझे कोई एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई गरम ठंडा नहीं लगना, मुझे कोई चिन्ह नहीं चाहिए, तू वचन बोल दे और वो काफी है। And the centurion tells Jesus, you speak the word only. I don't need an evidence. I don't need the experience of warmth or cold. You just say the word and I'll have it. That's enough. And Jesus like, oh, wow, और यीशु कहते हैं वो wow. ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। I have not seen such a faith in the entire Israel. Great faith. महान विश्वास। Hear this. सुनिए, Great faith महान विश्वास believes the spoken word. बोले गए वचन पे विश्वास करता है। Amen. Amen. कुछ सीख रहे हैं हम आज? Are we learning something today? Put Revelations 5:10. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10। आपके पिता की इच्छा क्या है आपके लिए यहाँ पर पृथ्वी पे? What is the will of your father here on the earth? हाँ, कई लोग बोलते हैं कैसे चल रही है? You ask some people how's it, they say yeah, just ठीक ही है, surviving, it's okay, कट रही है। doing what we can do. हाँ, क्या लिखा है? What does it say? And have made us यानी हिंदी में I don't know who has translated it, पर हमें, अस मतलब हमें, उन्हें नहीं, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा, फिर राज्य कर दिया, राजा, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा, फिर राज्य कर दिया, राजा और याजक बनाया। और हम, इंग्लिश में वी है, यहाँ वे पता नहीं क्यों कर दिया। पता वे क्यों किया? क्योंकि थियोलॉजी खराब है। Because they think they are those people who have gone to heaven. क्योंकि इनको लगता है ये वो लोग हैं जो स्वर्ग चले गए। English Bible says we. अंग्रेजी में लिखा है हम। Say we. बोलो हम। अभी सारे लखनऊ वाले बन जाओ, बोलो हम। हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। राज्य करेंगे। We will reign on the earth. You are called to rule and reign. That is your DNA. That is why your father designed you. आप बुलाए गए राज्य प्रभुता करने के लिए, ये आपकी बनावट है, इसी के लिए आपके पिता ने आपको बनाया है। Amen. कितने लोग राज्य करना चाहते हैं? How many people want to reign? Amen. That means whatever comes against you, you will be able to subdue it. That was the original intent of God for mankind. इसका मतलब जो कुछ आपके विरुद्ध आता है, आप उस पर प्रभुता करेंगे। ये आपके बनाए जाने के पीछे परमेश्वर का मकसद था। Oh, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। प्रभु कह रहा है प्रभुता कर उस डिप्रेशन के Oh, ऊपर। I'm very depressed. The Lord is saying, rule over that depression. What was God trying to tell Pastor Shoddy? परमेश्वर क्या कह रहे थे पास्टर शॉडी से? क्यों प्रभु ने कहा Shoddy, get out of your bed and start speaking to your body? Why did the Lord say, शॉडी अपने बिस्तर से उठो, अपने शरीर से बोलना शुरू करो? Because God was telling her, क्योंकि I परमेश्वर से कह रहे have थे, given you the power and authority to rule. Now you rule over this sickness that that devil is sending against you. मैंने तुम्हें सामर्थ्य और अधिकार दिया है राज्य करने के लिए। अब तुम राज्य करो इस बीमारी और शैतान के ऊपर जो तुम्हारे विरुद्ध आता है। Amen. आप क्यों बनाए गए थे? Why were you created? राज्य और प्रभुता करने के लिए। To rule and reign. Have you heard that we were created to worship? क्या आपने सुना है कि हम आराधना करने के लिए बनाए गए हैं? It's a very famous teaching. बहुत फेमस शिक्षा है। Yes, we will worship God. हाँ, हम परमेश्वर की आराधना करते That's a हैं, privilege. हमारा सौभाग्य है। The Bible doesn't say that. When God made us, God said, "Oh man, let me make some worshippers." लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जब बनाया हमें तो उसने कहा कुछ आराधना करने वालों को बनाता हूँ। Put Psalm chapter 8 verses 6. भजन 8 उसकी 6वीं आयत। No, yeah. Now, first put verse 4. ठीक है अभी सब ठीक है यहाँ पे? हाँ? Amen. Hallelujah.
जो पेट की गुड़गुड़ है उसके ऊपर भी प्रभुता करनी है। To rule over the rumblings of जो the stomach. फोन में नोटिफिकेशन आते हैं टिंग टिंग टिंग, उनके ऊपर भी प्रभुता करनी है। Rule over the notifications of your phone. आमेन। जो बार बार सुसु आती है उसके ऊपर भी प्रभुता करनी है। Those who have to go. I'm telling you the truth. Amen. You have to learn to talk to your body. आपको अपने शरीर से बात करना सीखना है। Your body hears you. आपका शरीर सुनता है आपको। मैं अफ्रीका में था। I was in Africa. There was no toilets. वहाँ टॉयलेट्स नहीं थे। और इस घने जंगल के बीच में And in the middle of such dense desert, forest, मैं वहां गया। वहां ऐसी ऐसी आवाजें आती थी रात को जो मैंने कभी नहीं सुनी। you would hear such sounds you would have never heard in your life. और जितनी आयतें मुझे आती थी मैं सब बोल देता था। And all the Bible verses I knew, I would have declared them. तो फाइनली मैंने क्या किया? So finally what I did? I'm telling you the truth before God. मैं परमेश्वर के सामने सच कह रहा हूँ। Told my body. मैं अपने शरीर से कहा, I said, no number 2. Until I find a toilet, जब a तक decent toilet. एक ढंग का टॉयलेट ना मिले, दो नंबर नहीं आएगा। For 1 week. एक हफ्ते तक। 1 week. एक हफ्ते तक। I ate 3 meals a day. मैंने 3 बार खाना खाया दिन में। The gates were shut. फाटक बंद थे। Until we finally went to a pastor's home. जब तक फाइनली एक पास्टर के घर गए हम। You know what? Your perspective can change so quickly. आपका दृष्टिकोण इतनी जल्दी बदल सकता है। My prayer, we were in Uganda and my prayer was, I was not asking for a nice hotel, हम युगांडा में थे। not asking for a nice coffee. मैं अच्छी कॉफी, अच्छे होटल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। Oh God, मैं कह रहा था, प्रभु give me a toilet. एक अच्छा टॉयलेट दिला दो प्रभु यहाँ पे। And the day we went to that pastor's house, और जिस दिन हम उन पास्टर के घर गए, and he said, if you have to freshen up, you need, and I opened the and I saw a commode. I wanted to be prostrate on my face and just thank the Lord. Oh Lord, you are so merciful and you're so good. उन्होंने कहा फ्रेश हो जाइए। मैं वॉशरूम की तरफ गया, जब दरवाजा खोला देखा कमोड है, तो मैं नतमस्तक होकर प्रभु की स्तुति करना चाहता था, उसको धन्यवाद देना चाहता था कि वो कितना भला है, कितना दया से भरा हुआ है। आप जानते हो हम में से कई लोग परमेश्वर को केवल तब धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ अच्छा होता है। You know, many of us only thank God when something good happens to us. मगर अनंत में आपको पता चलेगा But only in eternity you will see. कि क्या कुछ होना था और परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया, और आप तब वो समझ पाओगे अनंत में कि उसकी कीमत कितनी बड़ी है। What all was going to happen that the Lord did not let happen in your life, and you will understand how great the cost of that is. और वहां पे आपको पता लगेगा, And then you will know. क्योंकि न्यूज में केवल वो न्यूज आती है जो फ्लाइट क्रैश कर गई। न्यूज वो नहीं बताती जो 10 करोड़ फ्लाइट सेफली लैंड करी, क्योंकि वो न्यूज नहीं है ना। Because the news only reports the flight that crashed. The news does not talk about the millions of flights that landed safely, because that's not news. कितनी बार आप मीटिंग में आए, आपके शरीर में कुछ बन रहा था, वो प्रार्थना में घुल गया, आपको पता भी नहीं चला। So many times. एक्सीडेंट जो होने थे, जो कभी नहीं हुए, जो आपके घर के विरोध में प्लान्स बने, हथियार बने, जो कभी सफल नहीं हुए, वो हमें केवल अनंत में पता चलेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। The accidents, the plans, the weapons that were created against you that were not allowed to function against you, we will only know them in eternity. ओके, जो टॉयलेट वाला एग्जाम्पल था, पता है ना आपको क्यों दिया मैंने? कुछ लोग हर आधे घंटे में उठते हैं। Some people get up every half hour. अगर मैं एक हफ्ते के लिए अपना विश्वास इस्तेमाल कर सकता हूँ, If I can use my faith for a week, तो आप 4 घंटे के लिए तो कर सकते you हो। can use yours for 4 hours. Amen. All right. अभी तो शुरू हुआ है वचन। The word is just starting.
प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। Lord, increase our faith. प्रभु कह रहा The Lord है is मेरा वचन बोलना शुरू कर, Start speaking my word. मुझसे प्रार्थना मत कर। Don't pray to me. सोचो अगर विश्वास एक बीज की तरह है, प्रभु बता रहा है, Imagine if faith is like a seed. और that the Lord आप is saying. देखो कि एक किसान है And you see a farmer, और वो एक बीज को आगे रखे रहा है, हो प्रभु इस बीज को बढ़ा, प्रभु जी इस बीज को बढ़ा। and this farmer takes a seed and says, Lord, increase this seed, Lord. तो क्या बोलोगे आप? What will you say? क्या बोलोगे? What will you say? क्या करो? What do you do? प्रार्थना करके बढ़ेगा वो बीज? Will the seed grow by praying? क्या करना पड़ेगा उसको? What do you have to do? बोना पड़ेगा। You have to sow the seed. जो एक शारीरिक बीज का बोना है, वो इस आत्मिक बीज का कहना है। So what is to a physical seed? What is sowing to a physical seed is speaking to the spiritual seed. When you speak the word, you sow the word. जब आप वचन को बोलते हो, आप वचन को बोते हो। पूरा परमेश्वर का राज्य is about the seed. The entire kingdom of God is about the seed. Okay? Hallelujah. पहला संडे, First Sunday. Amen. विश्वास आपके उन अदृश्य हाथों की तरह है, जितने बड़े हाथ बना लोगे आत्मा में, उतना बड़ा पकड़ पाओगे जो परमेश्वर आपको दे रहा है। Faith only receive what God has already given by grace. Faith is like invisible hands. The greater you make your hands, the more you are able to grasp. विश्वास वही पकड़ पाता है जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। Amen. सोचो इस बिल्डिंग के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा है जहां 1,00,000 मेगा टन बिजली बन रही है। Imagine there's a transformer outside the building which has lakhs of tons of electricity. मगर जो तार आ रही है But the wire that's coming वो 1000 वाट ले सकती है, can handle only 1000 watts. तो अंदर कितनी बिजली आएगी? So how much electricity can we have here? 1000 वाट। 1000 watts. तो क्या डिसाइड कर रहा है या क्या ये बात तय कर रहा है कि अंदर कितनी बिजली आएगी? बाहर जो ट्रांसफार्मर है या जो तार उसको अंदर लेकर आ रही है? So tell me, what is deciding how much electricity will flow in the transformer outside or the cable connecting it? समझ रहे हो? You understand? विश्वास आपके उस तार की तरह है Faith is like that जो wire परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको कनेक्ट करता है। that connects you to the power of God. जितना विश्वास डेवलप करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में फ्लो करने लग The जाएगी। more you develop your faith, the more the power of God will work in So your it's life. not God who decides, परमेश्वर नहीं तय करते, you decide आप तय करते हो। how much you'll be able to receive. कितना ग्रहण कर पाओगे आप? कितने लोगों ने वो विधवा की कहानी सुनी है? एलाइशा एक विधवा के पास गया। I mean, you've heard the story of that widow. ओके, Elisha. अब वो जो भविष्यद्वक्ता है उसने